Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the second chapter in political science. All the things, all the informations that we have completed till now, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी किया है, okay, we are trying to understand the importance of healthcare services. Children, it's very important to be healthy. You know it very well. Health is wealth. खाली बोलने के लिए नहीं बोलते हैं. It is actually. एक दिन बीमार हो, देखो कैसा लगता है. You just feel like, oh God, please cure me. At that time, you don't feel like having some good food or something. Physically, if you are unfit, that is the worst thing that could happen. You only pray to God, Bhagwan ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, right? So here we are trying to understand in this chapter that there is the role of government in solving the health issues. Health problems need to be sorted out. लेकिन हमको ये समझना है, is it only the responsibility of the government? क्या ये खाली government की responsibility है? Or are we also having some responsibility? Children, yes, it is our responsibility as well. खाली government को हम नहीं कह सकते हैं. We cannot always say the government. Okay, government is making lot of arrangements. This is what we have discussed in the last class. Last class में हमने क्या discuss किया? We have discussed about the government facilities for health arrangements. We are making the government. Of course, elections होते हैं, हम वोट करने जाते हैं. हम उन्हीं को वोट करते हैं जिनके लिए कि we feel कि these are the people. ये government अगर हम select करेंगे तो this government will give us proper services. ये हमको अच्छी सर्विसेज देंगे. ऐसे लोगों को हम वोट नहीं करते हैं. We do not vote such people who will not give us proper services. Got it? We need to understand this. It is very important. तो हमने we have studied about two stories. Story of Hakim Sheikh and then the story of two friends, Aman and Ranjan. Ranjan goes to a private hospital. Look at the kind of facilities that was provided to him. Doctors हंस के बात कर रहे हैं. Nurses are treating him so well. इतनी अच्छी तरीके से he was, लेकिन it was all on the basis of money, money, money. सारा कुछ जो हो रहा है, all the special treatment that is being provided, it was on the basis of money. पैसे के दम पे ही तो सब कुछ हो रहा है. जब पैसे के दम पे हो रहा है, when everything is happening in the form of money, 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 तो हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? How are we solving the problem? We need to understand it. Public health में ऐसा नहीं है कि government is not making arrangement. Just see the public health services. Government is providing services of health care, all its citizens. When you go to a government hospital, they will not ask you, are you a rich person, are you a poor person? Believe me, children. Here we have the Kabir Chaura Hospital. Kabir Chaura Aspatal hai. That's a government hospital. 1 rupees में receipt बनता है. 1 rupees only. Government is charging 1 rupees from you. But then, poor people की संख्या बहुत ज़्यादा है. There is a long queue. People who do not have time and who have money. Time नहीं है लेकिन पैसा है. So they immediately go to the private hospital. वहाँ पे क्यों नहीं लगाना पड़ता? Because everybody who do not have money, they are not going there. जिनके पास पैसे ही नहीं है, वो वहाँ पे कैसे जाएंगे? In the private hospital. So they are there in the long queue. लंबी लाइन में खड़े होंगे लेकिन 1 ही रुपया लगेगा ना. This is what Aman also said. Aman said the same thing. Ranjan said कि I got a very good services, लेकिन everywhere his father has to pay money. But here we can see that Ranjan, that Aman and his father had taken him to the hospital. He was also suffering from the viral fever, but he did not have to pay money everywhere.
उनको तो हर जगह पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज अ बिग डिफरेंस। तो अब हकीम शेख की स्टोरी हमने पढ़ी। हकीम शेख गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैव डिनाइड टू एडमिट हिम एंड द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर संघ के जो लोग थे, दे वर वेरी अनॉयड, वो बहुत नाराज थे और उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर केस किया। केस का नतीजा क्या हुआ? हाँ, वी विल बी डूइंग इट, अभी आने वाले टाइम में हम उसको करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट इज ओपनिंग, जहां वो सिर्फ 1 रुपीज ले रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज तो पूरी है, वहां आप ऑपरेशन करा सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग देयर इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। When everything can be done in the government hospital, पैसा कहां से आ रहा है? We are not giving the money, but then it is meant for everyone, and it is this money is coming from the people who are paying taxes. अपने फादर से पता करना, just ask your talk to your parents. Father, does he pay tax? क्या वो टैक्स पे करते हैं? Yes, he might be always paying the tax. So people are देयर जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, इस टैक्स का इस्तेमाल होता, न्यू हॉस्पिटल्स आर ओपन, हॉस्पिटल्स में जो भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, दैट इज ऑल बीइंग यूज्ड बाय द हॉस्पिटल्स, एंड दैट इज वेयर द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। आम आदमी तक ये जो सर्विसेज पहुंच रही है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज टैक्सेस दैट वी आर पेइंग। गॉट इट? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी क्या है? पब्लिक हेल्थ सिस्टम। गांव का मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ विलेज। विलेजेस में हॉस्पिटल्स बहुत दिक्कत से खुलते हैं क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज आर नॉट इजिली अवेलेबल, बिजली नहीं होती है, इक्विपमेंट्स लगा भी दिए तो डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल। ये सारी चीजों को देखते हुए बिग हॉस्पिटल्स आर देयर इन सिटीज, बट गांव में क्या खुलता है? प्लीज रिमेंबर लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, PHC। ओके, यस, ऑफ कोर्स PHC वाज देयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ PHC, दैट इज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दैट इज लोकेटेड इन द cities, in the villages, I'm sorry. Okay, अब all the ailments that is there, खाली यही नहीं है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर में क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज तो है ही, बट वी हैव टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस एज वेल। बीमारी को फैलने से भी तो रोकना है। अभी कोरोना के साथ क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग विद कोरोना? कोरोना इज स्प्रेडिंग सो फास्ट। खाली क्योर नहीं करना है ना, स्प्रेड भी तो नहीं होना है। सो यू कैन सी सो मेनी एडवर्टीजमेंट्स आर कमिंग। Always wear mask, keep washing your hand regularly, sanitize your hand, maintain distance. ये सारा क्या है? These are all the examples which is giving you guidelines how to save yourself from corona. कोरोना से सेव करना खाली गवर्नमेंट का काम नहीं है, इट इज द वर्क ऑफ द कॉमन मैन ऑल्सो। गवर्नमेंट अकेले क्या करेंगी वो आपको बता सकते हैं, करना तो आपका काम है ना। यू हैव टू बी देयर where you are separated, where you are in a segregated manner, तभी तो कोरोना को रोक पाएंगे। ओके, सो when taking up campaign, कभी कभी क्या होता है कि in the जब नहीं समर इज फिनिशिंग एंड रेनी सीजन हैव कम, तो बीमारियां स्प्रेड हो जाती है, मौसम बदलता है, कितने मच्छर आ जाते हैं, तो देन देयर इज बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि आपको चिकनगुनिया हो सकता है। ओके, मच्छर के काटने से बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो कूलर्स में पानी, आपको यू विल सी मैसेजेस आर कमिंग ऑन द टेलीविजन एंड इन द न्यूज़पेपर्स, कूलर्स में पानी मत रखिए, गंदा पानी साफ करते रहिए, इसी गंदे पानी में मच्छर गए वो होते हैं। ऑल these आर द गाइडलाइंस दैट आर गिवन टू अस बाय द गवर्नमेंट। अब हकीम शेख का याद है, डू यू रिमेंबर द इंसिडेंट ऑफ हकीम शेख? नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट हिम।
अभी उसके साथ क्या हुआ पता है, उसने जब कोर्ट केस किया, व्हेन ही हैज एंटर्ड इनटू अ कोर्ट केस, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया ना, कि जगह जगह जाके हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से भीख मांग रहे थे, ठीक है, he was trying to make the people aware, तो लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उनको जगह नहीं दी, जिसके वजह से कि he has to go to a private hospital and spend so much of money. What were the government hospitals doing at that time? Government hospitals actually कर क्या रहे थे उस समय? That is a big question, dear students. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने अगर उनको एडमिट कर लिया होता, if he would have been admitted, then the scene would have been very different. So, primary duty of the government is to ensure welfare of the people and provide healthcare facilities to all. So, primary duty of government is to provide healthcare system. ओके, हर एक इंसान को मिलना चाहिए, एवरी हेल्थ केयर सिस्टम टू ऑल, गरीब या अमीर से मतलब नहीं है, एवरीबडी शुड बी गेटिंग दिस हेल्थ केयर फैसिलिटी. और अगर इफ गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग, देन द गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट, गवर्नमेंट इज एट मिस्टेक, and government has to safeguard the right to life of every person. This is fundamental right as per mentioned in the constitution. It is mentioned in the constitution that government has to safeguard, government की duty है, has to safeguard the principle of right to life. हर एक इंसान को जीने का अधिकार है कि नहीं है? I am born in India and I am a citizen of India. So it is, I have elected a government. Yes, वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? When we go for voting, we elect and we select a government. हम गवर्नमेंट बनाते हैं, तो ये गवर्नमेंट को देखना है. When we have voted for the government, it is the duty of the government to safeguard our rights. And सबसे पहला राइट है राइट टू लाइफ. मरने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, जिंदा रहना है. Everybody struggles to have a healthy life. हकीम शेख के साथ क्या हुआ? His relatives have to take him from one hospital to the other hospital. एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. So court said that the difficulty of that Hakim Sheikh had to face, ये जो हकीम शेख को परेशानी हुई, it could have cost him his life. उसकी जिंदगी जा भी तो सकती थी. That is there. This was the decision given by court. The court said that हकीम शेख के रिलेटिव्स और उसके दोस्त कितना परेशान होंगे, कितना हुए होंगे परेशान. So court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face, that the difficulty Hakim Sheikh has to face could have caused him to lose his life. अपनी जिंदगी भी तो खो सकता था. He would have lost his life. अपनी जिंदगी के दम पे, on the cost of his life. क्या मतलब बनता है? And hospital couldn't provide timely medical treatment to a person. It means that protection of life is not given.
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ, एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। मरने के लिए थोड़ी छोड़ सकते हैं, मरते हो तो मरो। कैन एनीबडी से दैट? नो, नोबडी कैन से दैट। एंड hospital cannot provide timely medical treatment. It means protection of life is not being given. उसकी जिंदगी को बचाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। हॉस्पिटल्स खाली दिखाने के लिए थोड़ी खोल के रखे हुए हैं। अब मरीज को लेके आ रहा है कोई, तो आप उसको थोड़ी कह सकते हैं चले जाओ चले जाओ चले जाओ। दैट इज व्हाट दे हैव डन, एक्चुअली दैट इज व्हाट दे हैव डन टू हकीम शेख। सो प्रोटेक्शन of life is not being given. उसकी जिंदगी को बचाने का काम नहीं किया गया। It was a very sorry state. And कोर्ट ने कहा कि it is the duty of the government to provide the necessary health services. गवर्नमेंट को खाली गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल कि वो अपना पावर दिखा सकें। Government is there to provide services to the people. It is the responsibility of the public health system to take care of the health of the people. So, court में उन लोगों ने केस कर दिया। It's very nice that they have done. Court said that it is the duty of government to provide proper medical facilities. हर एक इंसान को जिंदा रहने का हक है। उसको मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। No person can be left like this just to die. So hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. It is the responsibility of the hospital कि कोई सर में चोट लगी हुई है, खून निकल रहा है, नहीं इस हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं कर सकते। What is this? So hospitals and medical staff must fulfill their duty. उनका काम है लोगों की जिंदगी बचाना। Hospitals and medical staff must fulfill their duties. अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। As a result, उन्होंने क्या कहा कि हकीम शेख was denied treatment at various government hospitals. हकीम शेख को जहां जहां वो लेके जा रहे थे वहां मना कर दिया गया था उनको। तो court said to the state government to give him the money that he had spent on his treatment. He has to go to the private hospital. Private hospital में कितने पैसे लगे? So उस सारे का बिल उसने रखा हुआ था। He has kept all the receipt होती है ना, वो आपको देते हैं। The blood test is done, the eye test is done, and पट्टी का खर्चा, ये वो दवाई medicine. So the court said that government has to pay all the money that he has spent for his treatment. स्टेट गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स को देखभाल करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सो स्टेट गवर्नमेंट हैज टू पे ऑल द मनी स्पेंट बाय हकीम शेख फॉर हिज ट्रीटमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो गया तो वहां उसको ट्रीटमेंट मिली, लेकिन इमेजिन द काइंड ऑफ मनी दैट ही हैज टू स्पेंड। गरीब इंसान है ना, खेत मजदूर, खेतों में मजदूरी करता है, तो उसके पास बहुत पैसे तो हो नहीं सकते हैं। ही कुडंट बी हैविंग लॉट ऑफ मनी। अब ये मनी वो कहां से लेके आएगा? फ्रॉम वेयर विल ही गेट दिस मनी? सो
जिस हॉस्पिटल ने उनको डिनाई किया था कि नहीं 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 हमारे यहाँ तो जगह नहीं है, जस्ट टेक हिम अवे, इसको लेके जाइए, हम एडमिट नहीं कर सकते हैं, उन हॉस्पिटल्स को अब खर्चा उठाना पड़ेगा. नाउ दोज हॉस्पिटल्स हैव टू टेक केयर ऑफ हकीम शेख. गुड. कोर्ट की जो डिसीजन हुआ दैट वाज वेरी नाइस. एक गरीब आदमी की जीत है ये. दिस इज अ विनिंग फैक्टर फॉर अ पुअर पर्सन. बेचारा. ओके, सो everybody has to be given medical facility regardless of their status, whether a rich or a poor person. Hakeem Sheikh को and सोचो it was the kind of pain he has gone through. कितनी दर्द में हो रहा होगा, सर से खून निकल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है. तो आप सोचो, हकीम शेख की परेशानी सोचने की कोशिश करो. Dear students, this is what has been very clearly mentioned. अब हमने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अरेंजमेंट्स किया है. Just now we have seen what all arrangements have been made by government. Now what we will be seeing? We will be seeing कि हकीम शेख जिन हॉस्पिटल्स में गया वहां उसको क्या फैसिलिटी मिली. So we are right now talking about प्राइवेट. पब्लिक हमने देख लिया, गवर्नमेंट क्या करती है हमने देख लिया. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज. व्हेन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डिनाइड कि नहीं हम आप पे इलाज नहीं कर सकते हैं, तो क्या उनके रिश्तेदार उसको मरने के लिए तो नहीं छोड़ेंगे. दे टुक हिम टू द प्राइवेट हॉस्पिटल. और वहां पे क्या हुआ, लॉट ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. Large number of doctors run their own private clinics. Got it? Large number of doctors run their own private clinics. सबका पास अपना अपना व्यवस्था है और एवरीबडी हैज गॉट. क्योंकि क्या होता है दैट द डॉक्टर्स, इवन द डॉक्टर्स हु आर रनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके जो काम भी करते हैं ना, वो भी अपनी क्लिनिक खोल के रखते हैं. क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में द पीपल हु आर कमिंग ज्यादा पैसा देंगे. किसको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, एवरीबडी वांट्स. रूरल एरियाज में वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. इन रूरल एरियाज, गांव में क्या होता है, देयर आर रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. रजिस्टर्ड होते हैं. a person who has become a doctor has got a certificate. ऐसे थोड़ी कोई जाके, मैं थोड़ी जाके बोल सकती हूँ चलो आई एम अ डॉक्टर, आओ कम टू माई क्लिनिक, मैं इलाज करूंगी. थोड़ा बहुत तो ना जानकारी मुझे भी है कि बुखार हो गई तो ये दवा ले लो. बट नो, आई हैव टू शो द सर्टिफिकेट. अरे बाबा, आई हैव टेकन अ प्रॉपर एजुकेशन इन अ मेडिकल कॉलेज. सो registered medical practitioners are there who are called as RMP. RMP का फुल फॉर्म याद रखिएगा. अर्बन एरियाज में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं. मेनी ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. इन अर्बन एरियाज मेनी डॉक्टर्स आर प्रोवाइडिंग specialized services. Now what do you understand by specialized services? What do you mean by specialized services? हार्ट की प्रॉब्लम है, सो कार्डियोलॉजिस्ट इज देयर, आप उन डॉक्टर के पास जाओ, दैट इज स्पेशलाइज्ड. अब बुखार होगी तो आप उसके पास नहीं जा सकते. जनरल डॉक्टर्स आर देयर, उनके पास आप जा सकते हैं. हार्ट की प्रॉब्लम है, आई की प्रॉब्लम है, सो आई के लिए डॉक्टर हैं. गॉट इट? देन यू हैव प्रॉब्लम इन योर stomach, so gastrologists are there.
Okay, so that is called as specialized services providing. These doctors provide specialized services, and there are hospitals and nursing homes that are privately owned. I told you yesterday. So there are hospitals and nursing home. नर्सिंग होम है, यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड है, किसी ने अपना पैसा लगा के अपनी हॉस्पिटल खोला है, प्राइवेटली ओन्ड। यस, फर्दर आगे हम इसको करेंगे द नेक्स्ट क्लास। डियर स्टूडेंट्स, 2-3 informations and some questions are there. I wanted to show it to you from the book. Come, let's see it. Okay. डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में हमने पढ़ा इन द लास्ट वीडियो। टुडे वी हैव स्टार्टेड अबाउट द प्राइवेट हेल्थ केयर। प्राइवेट हेल्थ केयर समझने में वी आर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी ऑफ रंजन एंड अमान। रंजन एंड अमान के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो वी अंडरस्टैंड that Aman is facing the government। अमान जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो आपको रिमेंबर द स्टोरी दैट वी हैव डिस्कस्ड, उसमें व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स अमान हैड फेस्ड इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उसको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिस इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू असेस। इसके बारे में बताइएगा। ओके, वी विल बी डिस्कसिंग, वी कैन डिस्कस इट इन द ऑनलाइन सेशन ऑल्सो। एंड why did Ranjan have to spend so much money? रंजन इतना पैसा क्यों स्पेंड कर रहा था, इसका कारण भी आपको। Why was he spend money? Because he was into the private hospital। और प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देने ही पड़ते हैं। इस चीज़ को समझो, इसी हिसाब से समझना है आपको। गॉट इट? एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमको कोई प्रॉब्लम्स की सामना करना पड़ता है? या ऑफ कोर्स वी डू हैव सम प्रॉब्लम्स इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं जितनी कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में। इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हाउ इज़ इट रन? From where does the money come to run these government hospitals? This is what was explained कि it is through taxes। अब देखो, we are paying the taxes to the government। Ask your parents, ask your father कि does he pay the tax? He will tell yes। It's a big thing, बहुत बड़ा काम है। The people who are paying the taxes are the most honest people। बहुत ही जो honest लोग होते हैं वही टैक्स पे करते हैं। एक नंबर की कमाई जिसको कहते हैं, उनको टैक्स पे करना ही है। सो गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी क्या क्या करने के लिए? ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट इज यूजिंग फॉर पब्लिक सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि हम टैक्स पे करते हैं और वो गवर्नमेंट अपने पॉकेट में भर के चले जाते हैं। नो, दैट होल मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल। बिलीव मी, जैसे डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज, दीज ऑल आर बेनिफिटिंग ऑल द सिटीजन्स। सारे लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। नहीं तो क्या होगा, सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर। आप सारे लोग अपना खुद का इंतजाम कैसे करेंगे? हाउ विल दे ऑर्गेनाइज द सर्विस फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए? सो व्हाट हैपन्स इज टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। टैक्स जो हम देते हैं इसके वजह से ऑल द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर हैपनिंग। स्कूल्स खुलते हैं, कॉलेजेस खुलते हैं, हॉस्पिटल्स, रोड्स बनते हैं। रोड्स आर ऑल्सो मेड। एम्प्लॉयमेंट इज गिवन टू द पीपल, सोशल वेलफेयर हैपन्स, वोकेशनल ट्रेनिंग। तो द पीपल हु नीड दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। हमको आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। दोज हु नीड दीज। Then natural disasters are there। हम कुछ भी रोक सकते हैं। Can we stop the earthquake? Can we stop the corona? देखो, ये भी तो नहीं कर पा रहे। तो these are natural disasters, जैसे कि फ्लड,
अर्थक्वेक, सुनामी, स्पेस, न्यूक्लियर मिसाइल, ये सारी चीज़ें, ऑल दीज प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग कैरिड ऑन, all these things that are being run in a very smooth manner, it is also funded from the revenue collected as taxes. इन्हीं टैक्स के थ्रू ही ये सारा फंड्स जो है वो यूज़ होता है. एंड पुअर पीपल, जो कि गरीब लोग हैं, हु कैनॉट अफोर्ड टू परचेज, जो मार्केट जाके ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, एक तरीका है, वन एग्जाम्पल इज़ हेल्थ केयर. Health care is arranged by the government and health care is the facility that the poor people need. अब आप और भी सोचो कि और क्या क्या चीज़ें हैं that is required for the poor people. गरीब इंसान के लिए क्या पड़ती है, that you have to find it out. Got it? ये देखिए हेल्थ केयर फैसिलिटी है. डॉक्टर इज़ देयर इन द रूरल हेल्थ सेंटर. ठीक है, शी इज़ गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट. आप देखिए मेडिसिन यहाँ पे बिल्कुल गांव की ये औरत है और देखो इसको जो है हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ द मेडिकल, अ वीमेन एंड हर सिक चाइल्ड इज़ एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ये देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल. एंड यूनिसेफ में क्या है, मोर देन बिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर. इंडिया में बहुत सारे बच्चे गुजर जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर मेडिकेशन. तो अब हमको ये देखना है कि हाउ these problems can be solved. Okay children, chalo, we'll be continuing in the next class children. Till then, thank you so much, all the best to you.